A very good morning to all students. Once again, we are coming to revise a very important topic of your class 11th accountancy syllabus. As you know very well, today is 29 January, and now after a few days, your final annual examination will be started. So, for your annual examination point of view, you know very well in the last few videos, we revised each and every topic from your syllabus. We already revised the practical problem based on the depreciation, bills of exchange, rectification of the error, concept of capital and revenue items, as well as we already discussed the very important topic that is an bank reconciliation statement. As well as we also prepared and make a videos on your important doubt like accounting concept and convention, like valuable things. For example, what is a basic accounting terms? Like what is a capital, what is a drawing, what is a assets, what is the type of the assets, what is the type of the liability, and what are the types of the different different component of the balance sheet. If you are talking about your whole syllabus, so your whole syllabus will be divided into the two parts. Part A, which are related to the theoretical accounting, which are based on the preparation of general, ledger, trial balance, as well as the different subsidiary book, preparation of the BRS, bills of exchange, rectification of the error, depreciation, as well as the theoretical topic like a provision and reserve. If you're talking about the part B, so you know very well, part B is totally depend on the preparation of the final account of sole proprietorship, like a preparation of trading account, profit and loss account and balance sheet with adjustment and without adjustment. As well as we discuss in your whole syllabus that is an use of computers in accounting as well as accounting of incomplete record and how we will convert the incomplete record to the complete record with the help of the statement of profit and loss and the statement of affairs. So in today's video, let's we revise and review the few of the examples which are related to one-sided error. So before solving the practical problem based on the one-sided error, let's we discuss the concept of one-sided error. So if you are talking about the rectification of the error, so error can be classified into the two categories. The first one is a one-sided error. Second one is a two-sided error. Two-sided error are those errors which affect the two side of the books of account, and it can be rectified by the passing and general entry. And if we are talking about the one-sided error, so it can be rectified on any of the two stage. It can be rectified at before the preparation of trial balance. It means वन साइडेड एरर को या तो हम ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले रेक्टिफाई करते हैं या फिर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद करते हैं. एंड अगर कोई भी वन साइडेड एरर यानी कि जो एरर एक साइड इफेक्ट करती है ट्रायल बैलेंस के पहले अगर हम उसको रेक्टिफाई करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लेजर अकाउंट में चेंज कर सकते हैं. बट जब अगर हम वन साइड एरर को रेक्टिफाई करते हैं आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस, तो सिचुएशन में हमें लेजर अकाउंट में चेंज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम जनरल एंट्री पास करते हैं विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट. सस्पेंस अकाउंट क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अगर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में वन साइडेड एरर होता है तो हमारा जो ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं होता, और इक्वल नहीं होता तो उसके लिए हम लोग सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देते हैं, और फिर जब उस एरर को हम रेक्टिफाई करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट हम उस एरर को रेक्टिफाई करते हैं. तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट वन साइडेड एरर के क्वेश्चंस पर डिस्कशन किया है कि वन साइडेड एरर कैसे सॉल्व होते हैं और उसमें सस्पेंस अकाउंट का यूज कैसे. तो विदाउट क्रिएटिंग एनी डिले,
let's we revise the practical problem based on the one-sided error, which is very important for your annual examination. So let us start the today's video. Rectify the following error. ये एरर्स हैं, उन सारे एरर्स को क्या करिए, रेक्टिफाई करिए. ओके सर, रेक्टिफाई करना है हमको. कौन कौन से एरर हैं? सो द एरर नंबर 1 इज सेल्स रिटर्न फ्रॉम मेगा. सेल्स रिटर्न फ्रॉम मेगा ₹1600 was posted to her account as ₹1000. अब इस एरर को कल हमने रेक्टिफाई किया था, लेकिन ये एज्यूम किया था कि हम ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं. आज सेम एरर को हम रेक्टिफाई करेंगे ये एज्यूम करके, एज्यूमिंग errors are rectified after preparation of trial balance. ये हमें एज्यूम करके चलना है कि हम ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद क्या कर रहे हैं, एरर को रेक्टिफाई कर रहे हैं. प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. तो मैंने ये आपको एज्यूम करके यहाँ शॉर्ट फॉर्म में दिखा दिया कि इस एरर को हमें रेक्टिफाई करना है, और ये एज्यूम करना है ये एरर रेक्टिफाई कब कर रहे हैं, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद. सो द फर्स्ट एरर, लेट्स वी टेक द वन मोर एरर. एक एरर से सर कहाँ क्लियर होगा, एक एरर और बताइए. एक एरर और लिख लो, डेप्रीशिएशन. दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ द डेप्रीशिएशन. रिटर्न ऑफ on furniture rupees 1500 were not posted to depreciation account. यानी हमने डेप्रीशिएशन चार्ज किया फर्नीचर पे, लेकिन डेप्रीशिएशन अकाउंट में ही पोस्ट ही नहीं किया. दूसरा एरर होगा. वन मोर एरर. अब पहले तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये वन साइडेड एरर है कि टू साइडेड एरर है. अगर टू साइडेड एरर है तो रेक्टिफाई करने के लिए हमें सस्पेंस अकाउंट की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी. लेकिन अगर वन साइडेड एरर है तो, और वन साइडेड एरर में वो कौन सा कंडीशन है, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम इसको रेक्टिफाई कर रहे हैं, तो भैया हमको जरूरत पड़ेगी किसकी, सस्पेंस अकाउंट की. ये बात आपको अपने माइंड में रखनी है. और अगर यही हम ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले करते तो हम पर्टिकुलर अकाउंट बनाते. कल मैंने आपको प्रॉपर्ली समझाया था अकाउंट बनाकर कैसे आपको इन सारे एरर्स को रेक्टिफाई करना होता है. नेक्स्ट, वन मोर एरर. कैश पेड टू नेहा. कैश पेड टू नेहा ₹2000 was not posted to her account. अब आप देख रहे होगे इसमें जो मैंने 3 एरर दिखाया है, इसमें जो पहला एरर है वो एरर ऑफ कमीशन है. एरर ऑफ कमीशन का कौन सा एरर है, ये एरर ऑफ कमीशन का वो एरर है जिसमें हम वैल्यू को कम रिकॉर्ड करते, अंडर कास्टिंग का. ये क्या है, डेप्रीशिएशन मैंने चार्ज किया फर्नीचर पे, लेकिन उसे डेप्रीशिएशन में रिकॉर्ड नहीं किया. तो इस सिचुएशन में अगर आप देखो तो फर्नीचर पे डेप्रीशिएशन चार्ज हुआ है, लेकिन रिकॉर्ड करना कहां भूल गए, डेप्रीशिएशन. यानी सिंगल अकाउंट में इफेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है. तो पहले तो आप फाइंड आउट करना सीख लो कि एरर वन साइडेड है कि टू साइड. देखो यहां पर क्लियर हो रहा है, वॉज नॉट पोस्टेड टू हर अकाउंट. हर का मतलब यहाँ पे क्या है, उस गर्ल से, यानी मेघा से. यानी मेघा के अकाउंट में पोस्ट नहीं हुआ, यानी एक ही जगह तो पोस्ट नहीं हुआ है, बाकी जगह पोस्ट हो चुका है. इसी तरह से डेप्रीशिएशन रिटर्न ऑफ ऑन फर्नीचर ₹1500 वेयर नॉट पोस्टेड टू डेप्रीशिएशन अकाउंट. कहां पोस्ट नहीं हुआ है सर, खाली डेप्रीशिएशन अकाउंट में पोस्ट नहीं हुआ है. इसका मतलब कौन सा एरर है सर, समझ में आ गया, इट इज अ वन साइडेड एरर. उसी तरह से देखो, कैश पेड टू नेहा ₹2000 was not posted to her account.
हाँ सर, उसके अकाउंट, किसके अकाउंट में नहीं पोस्ट हुआ? नेहा के ही अकाउंट में पोस्ट नहीं हुआ, बाकी तो सब कुछ सही है। तो आप इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए मैं आपको पहले एक बताना चाहता हूं कि एंट्री होती क्या, ओरिजिनल एंट्री क्या होती। जब हम एंट्री पास करते तो क्या एंट्री बनती? इट मींस फर्स्ट कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में, थर्ड कंडीशन में एंट्री क्या बनती? फर्स्ट सिचुएशन में एंट्री क्या बनती? सेल्स रिटर्न फ्रॉम मेगा 1600 वाज पोस्टेड टू हर अकाउंट रुपीज 1000, यानी कि सेल्स रिटर्न की किससे? मेगा से। तो एंट्री होती सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मेगा। ठीक है, मेगा हुआ कितना? 1600 का सेल्स रिटर्न हुआ था, लेकिन मेगा में केवल कितना रिकॉर्ड हुआ? 1000। ओरिजिनल एंट्री ये हुई होगी फर्स्ट कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में अगर आप देख लो तो क्या एंट्री हुई होगी? इन द सेकंड सिचुएशन द एंट्री विल बी depreciation written off on furniture 1500 were not posted to depreciation account, यानी एंट्री क्या होनी चाहिए थी? depreciation account debit to, ये ओरिजिनल एंट्री मतलब सही एंट्री मैं बता रहा हूँ, सॉरी। डेप्रिसिएशन लगाया फर्नीचर पे, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 1500। और थर्ड एरर विल बी कैश पेड टू नेहा रुपीज 2000 वाज नॉट पोस्टेड टू हर अकाउंट। तो कैश किसको पेड किया? नेहा को। सो द एंट्री विल बी नेहा अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना अमाउंट? 2000। सो अगर आप देखो तीनों की मैंने करेक्ट एंट्री कर दी। सपोज ये जनरल एंट्री का क्वेश्चन होता, सिर्फ इतना समझो, सेल्स रिटर्न फ्रॉम मेगा रुपीज 1600, तो एंट्री क्या होती? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मेगा। डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ फर्नीचर 1500, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, एंट्री हो गई। कैश पेड टू नेहा रुपीज 2000, कैश पेड टू नेहा, तो नेहा अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री होती। ओरिजिनली हम यही एंट्री पास करते? यस सर, यही करते एंट्री पास। द पॉइंट इज दैट कि सर ओरिजिनल एंट्री का मतलब ये एंट्री हम पास करते। अब गलती क्या हुई? वॉज पोस्टेड टू हर अकाउंट एस रुपीज 1000, यानी नेहा के अकाउंट में, मेघा के अकाउंट में कितना रुपए पोस्ट हुआ? 1600 की जगह कितना पोस्ट हो गया? 1000। यानी ये एक एरर आपने फाइंड आउट किया। फर्स्ट एरर में ये हुआ कि मेघा 1000 से क्रेडिट हुई, क्रेडिट कितने से होनी चाहिए थी? 1600 रुपए से। दूसरे कंडीशन में देखो, डेप्रीशिएशन रिटर्न ऑफ फर्नीचर रुपीज 1500 वेर नॉट पोस्टेड टू डेप्रीशिएशन अकाउंट, यानी डेप्रीशिएशन अकाउंट में पोस्ट नहीं हुआ, यानी डेप्रीशिएशन अकाउंट में पोस्ट नहीं हुआ, पोस्ट सिर्फ कहां हुआ? फर्नीचर अकाउंट। यस सर। तीसरे सिचुएशन में देखो, कैश पेड टू नेहा रुपीज 2000 वाज नॉट पोस्टेड टू हर अकाउंट, नेहा के अकाउंट में पोस्ट नहीं हुआ, इसका मतलब नेहा का अकाउंट पोस्ट नहीं हुआ। जिसको मैंने ब्लैक से बॉक्स में डाल दिया है, इट मींस एरर वही है। और एरर को रेक्टिफाई करने के लिए यू नो वेरी वेल वी पास द रेक्टिफिकेशन एंट्री। एंट्री क्या पास होगी? रेक्टिफिकेशन। यहां देखो, इन सारे एरर को रेक्टिफाई करने के लिए जनरल एंट्रीज कौन कौन सी होगी? और यू नो वेरी वेल इन दिस सिचुएशन वी यूज द हेल्प ऑफ, वी टेक द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट। सो नंबर 1, आपने क्या किया? मेघा कितने से क्रेडिट हुई? 1000 से। होनी कितनी चाहिए थी? 1600 रुपए से। कितने से कम क्रेडिट हुई? तो मेघा को उतने से क्रेडिट कर दो। कितने से? 600 रुपए से। होना चाहिए 1600 से, हुई 1000 से, 600 से क्रेडिट कर दो। और किसकी हेल्प ले लो? जिसका कोई नहीं होता इस सिचुएशन में, उसका कौन होता है? उसका भगवान होता है। यू नो वेरी वेल, इट इज अ वेरी फेमस लाइन, ऊपर वाला सब देख रहा है। सो द सेकेंड सिचुएशन यू कैन सी दैट डेप्रीशिएशन डेबिट नहीं हुआ, डेप्रीशिएशन आपका डेबिट नहीं हुआ, फर्नीचर क्रेडिट हुआ। तो डेप्रीशिएशन को सही करने के लिए क्या कर दो? डेबिट कर दो। मतलब डेप्रीशिएशन में तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ ना, नॉट पोस्टेड टू डेप्रीशिएशन अकाउंट, तो डेप्रीशिएशन को डेबिट कर दो। किसकी हेल्प लेनी होती है सिचुएशन में? कौन सी सिचुएशन है? इट इज अ सिचुएशन व्हेन वी when error are rectified after the preparation of trial balance. So the second rectification entry, दूसरी entry, ये आपका आंसर है। दिस इज नॉट योर आंसर, दिस इज योर वर्किंग पार्ट। ये चीज आप माइंड में भी कर सकते हो, लेकिन ये फर्स्ट क्वेश्चन था, दैट्स वाई मैंने आपको लिख के दिया है। थर्ड सिचुएशन में दिस इज योर आंसर। द थर्ड पार्ट,
कैश पेड टू नेहा, तो नेहा को डेबिट नहीं किया आपने, सो द करेक्शन विल बी नेहा अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। आप देख रहे हो, you will take the help of suspense account. So this is the full and final solution of first question, in which question you can see that we rectify the one-sided error after the preparation of trial balance. यानी यहाँ पर हम लोगों ने one-sided error को rectify किया है trial balance बनाने के बाद, और किसकी help ली है? We take the help of suspense account. Okay? एक क्वेश्चन और मैं लेता हूं और उसमें मैं आपको बताता हूं कि एक एरर मैं और आपके लिए ले लेता हूं, ठीक है? तो उसको हम लोग यहां पास करेंगे, ठीक है? सो वन मोर एरर फॉर यू, बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और शायद अब आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए. द एरर इज क्रेडिट सेल्स टू मोहन, क्रेडिट सेल्स टू मोहन रुपीज 10,000 were to his account as rupees 12,000. अब देखो, मैंने क्रेडिट सेल्स किया मोहन को, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? ये सर एंट्री होती है सिचुएशन में मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स दैट इज 12,000. सही कर रहा हूं? नहीं सर, सेल्स तो हमने 12,000 का किया ना, बट फॉल्ट क्या हुई? वर टू हिज अकाउंट एज, मतलब मैंने उसके अकाउंट में कितना नोट डाउन कर दिया? हिज मतलब क्या होगा? सेल्स या मोहन? हिज का मतलब यहाँ पर्सन से है ना, सो हिज का मतलब यहाँ पर हमने किस में रिकॉर्ड किया होगा? मोहन के अकाउंट में कितना रिकॉर्ड कर दिया होगा? मोहन के अकाउंट में हमने 10,000 की जगह कितना राइट ऑफ कर दिया होगा? 12,000. सर ये गड़बड़ हो गया, हमने 12,000 रिकॉर्ड कर दिया, यानी 10,000 के बदले 12,000 रिकॉर्ड कर दिया, वो भी डेबिट कर दिया. सर जब कोई ओवरकास्ट होता है, मैंने आपको बताया था, जब अंडरकास्ट होता है तो सेम जगह इफेक्ट पड़ता है. जैसे इस सिचुएशन में मेघा अंडरकास्ट हुई थी 600 रुपए से, तो मेघा का वहां पे भी क्रेडिट हुई थी, यहाँ पे भी क्रेडिट, लेकिन यहाँ ओवरकास्ट है. ओवरकास्ट के सिचुएशन में एकदम माइंड में रख लो, इन द केस ऑफ द ओवरकास्टिंग एरर विच आर रिलेटेड टू द एरर ऑफ कमीशन, वहां पर अकाउंट को रिवर्स कर देते हैं, यानी कि मोहन यहाँ पर 2,000 रुपए से क्रेडिट हो जाएगा ताकि उसका इफेक्ट खत्म हो जाए. 2,000 रुपए से क्रेडिट हो गया, किसकी हेल्प ले लिया हम लोगों ने? वी टेक द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट. सो यू कैन सी दैट अंडरकास्टिंग में एरर को रेक्टिफाई करते वक्त हम क्या करते हैं? अंडरकास्टिंग में एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग सेम जगह ट्रीटमेंट करते हैं, यानी अगर डेबिट हुआ है अकाउंट तो डेबिट करते हैं, क्रेडिट होता है तो क्रेडिट करते हैं. बट जब एरर में ओवरकास्टिंग अमाउंट हो जाती है तो वहां अकाउंट को डेबिट अगर हुआ है तो क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट हुआ होता तो डेबिट करते, यानी अपोजिट इफेक्ट, क्योंकि उसकी वैल्यू कम करनी है, यहाँ इसकी वैल्यू इंक्रीज करनी है तो सेम जगह इफेक्ट पड़ेगा, और यहाँ वैल्यू उसकी कम करनी है सो इसके अपोजिट जगह इफेक्ट पड़ेगा. ओके, सो दिस इज अ rectification of one side error with the help of suspense account. So let's we take the one more important question, because in the examination it is very important for you कि sometimes in the examination suspense account is prepared by the examiner. So let's we take the one question for your convenience to determining the suspense account, how we will prepare the suspense account. Okay, so the next question, as you can see that the trial balance of Mohan did not agree, and he put the difference and he put the difference to suspense account. ये आपको हिंट दे रहा है
कि ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हुआ, यानी ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं हुआ, और उस और उसने कौन सा अकाउंट ओपन कर दिया, सस्पेंस अकाउंट। तो आपको बेसिकली करना क्या है, यू नो वेरी वेल, हमें बेसिकली यही करना है कि जितने भी ट्रायल बैलेंस नहीं मिलने के कारण जितने भी एरर्स हुए हैं उन सारे एरर को रेक्टिफाई करना है, और किसकी हेल्प लेना है, वी टेक द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट। He discovered the following error. The following errors, वो सारे errors कौन से हैं, so please इसको देखा जाए। The first error is sales return under cost by rupees 800। सेल्स रिटर्न किससे हो गया, 800 रुपीज से अंडर कास्ट हो गया। नंबर सेकेंड एरर इज परचेज रिटर्न टू साहू रुपीज 2000 वर नॉट पोस्टेड, यानी साहू को जो परचेज रिटर्न किया गया था वो पोस्टेड ही नहीं हुआ। एंड नंबर थर्ड इज इंस्टॉलेशन चार्ज on machinery rupees 500 were debited to sundry expenses, or expenses expense account as rupees 50। अब ये तीन एरर ही मैंने लिए आपके लिए, ये तीनों एरर को आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज सेज दैट रेक्टिफाई द एरर, इन एरर्स को क्या करिए, रेक्टिफाई करिए, एज वेल एज एन ascertain the difference in सस्पेंस अकाउंट, और आपको सस्पेंस अकाउंट में डिफरेंस भी पता करना है। सो इस पूरे क्वेश्चन में अगर आप देखो तो पहले इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ट्रायल बैलेंस जो था एग्री नहीं हुआ, बराबर नहीं है, तो उसके लिए हमने क्या किया, सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दिया, और बाद में ये फाइंड आउट किया कि हम ये सारे एरर्स थे, इस एरर्स के कारण हमारा ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं कर रहा था। द फर्स्ट वन इज द सेल्स रिटर्न अंडर कास्ट बाय 800, सेल्स रिटर्न अंडर कास्ट हो गई 800 रुपए से। परचेज रिटर्न किया साहू को 2000 रुपए जो पोस्ट नहीं हुआ। इंस्टॉलेशन चार्ज हुआ मशीनरी पे 500 रुपए, लेकिन उसे मैंने डेबिट कर दिया एक्सपेंस अकाउंट में कितने रुपए से, 50 रुपए से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, यहाँ अंडर कास्ट हुआ, यहाँ पोस्ट ही नहीं हुआ, यहाँ डेबिट होना चाहिए था मशीनरी अकाउंट में, क्योंकि जब भी हम कोई नई मशीन खरीदते हैं उसका जो इंस्टॉलेशन चार्ज होता है वो एक पर्टिकुलर मशीनरी अकाउंट में डेबिट होता है। लेकिन यहां पर हमसे गलती क्या हुई, इस सिचुएशन में हमसे गलती ये हो गई कि हमने वो सारा अमाउंट कहां रिकॉर्ड कर दिया, दिस विल बी रिकॉर्डेड इन द, कहां रिकॉर्ड हो गया वो सारी चीजें, वो रिकॉर्ड हो गई एक्सपेंस अकाउंट में। वो भी कितनी रिकॉर्ड हुई, 50 रुपए। रिकॉर्ड कितना होना चाहिए था, 500 रुपए, रिकॉर्ड कितना हुआ, 50 रुपए। तो एरर है, इन सारे एरर को पहले रेक्टिफाई करते हैं, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हम जनरल एंट्री पास करेंगे वन बाय वन। सो आंसर में ये तो आपको पता ही चल गया है कि जनरल एंट्री कैसे पास करनी है। आपको करेक्ट एंट्री पता करनी है, सन्ड्री सेल्स रिटर्न अंडर कास्ट हो गया है, अंडर कास्ट में सेम साइड या अपोजिट साइड, सर सेम साइड। सर ओवर कास्ट करके बताओ। देखो अगर सेल्स रिटर्न अंडर कास्ट है तो सेल्स क्या होती है, क्रेडिट, सेल्स रिटर्न क्या होगी, डेबिट। तो सेल्स रिटर्न अंडर कास्ट है तो सेम जगह इफेक्ट पड़ेगा, और यही अगर ओवर कास्ट होती तो डेबिट की जगह क्या कर देते, क्रेडिट कर देते। मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, आई होप। अगर नहीं समझ में आ रही हैं सो प्लीज टेक अ नॉलेज फ्रॉम द जनरल चैप्टर, क्योंकि जनरल में आपको मैंने क्लियरली बताया था कि सेल्स क्रेडिट होती है, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है।
तो सेल्स रिटर्न एक्चुअली में डेबिट होता है। इफ देयर एनी अंडरकास्टिंग तो सेम इफेक्ट पड़ेगा ना, डेबिट होता है तो डेबिट होगा, अगर ओवरकास्ट हो जाता तो सेल्स रिटर्न यहाँ क्या हो जाता, क्रेडिट हो जाता। वैल्यू कितनी है 800, जिसका कोई नहीं होता, सस्पेंस अकाउंट होता है। परचेज रिटर्न टू साहू ₹2000 वेयर नॉट पोस्टेड, ये किस तरह की एंट्री है, फर्स्ट ऑफ ऑल वर नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट, तो जाकर ये बनेगा कंप्लीट वन साइडेड। परचेज रिटर्न किया साहू को, सो एंट्री क्या होती है, एंट्री इज द साहू अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न में तो रिकॉर्ड हो गया, साहू में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो साहू को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट, और सस्पेंस को क्या करेंगे, क्रेडिट। कितना, 2000। okay, the third error, as you can see that on your screen, the third error will be सो द इंस्टॉलेशन चार्जेस आपको कहां रिकॉर्ड होना चाहिए था, इंस्टॉलेशन चार्ज रिकॉर्ड होना चाहिए था मशीनरी अकाउंट के नाम से, बट इट विल बी रिकॉर्डेड एज द डेबिट ऑफ द एक्सपेंस अकाउंट। यानी करेक्ट क्या था आपका, मशीनरी डेबिट होना चाहिए था, तो मशीनरी को डेबिट कर दो। कितने से डेबिट होना चाहिए था मशीनरी को, 500 से। ओके, गलती क्या हुई, आपने उसकी जगह क्या डेबिट कर दिया, एक्सपेंस। सो एक्सपेंस डेबिट हो गया, तो एक्सपेंस को करेक्ट करने के लिए एक्सपेंस को क्या कर दोगे, क्रेडिट। गलती से डेबिट हुआ था, उसको खत्म करने के लिए क्रेडिट कर दो। कितने से डेबिट हुआ था, 50 रुपए से, तो उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए क्या करोगे, एक्सपेंस को क्रेडिट कर दोगे। और यू नो वेरी वेल डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट, आप यहाँ देख लो 800 800 2000 2000, यहाँ 550, तो 450 का डिफरेंस है क्रेडिट साइड में, तो किसकी हेल्प लोगे, यू विल टेक द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट। So this will be the rectification entries all of the थ्री एरर, ये तीनों एरर का रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, ये तीनों एरर जो हैं उनको मैंने रेक्टिफाई कर दिया। एंड नाउ इसमें क्या बोला है, असर्टेन द डिफरेंस इन सस्पेंस अकाउंट। इस पहले बोला कि एरर को रेक्टिफाई करो, मैंने रेक्टिफाई कर दिया। अब उस एरर को कंप्लीटली खत्म करने के लिए क्वेश्चन इज आस्किंग टू असर्टेन द डिफरेंस इन सस्पेंस अकाउंट, यानी सस्पेंस अकाउंट में कितना डिफरेंस है, उसके लिए आपको यू विल हैव टू प्रिपेयर दी सस्पेंस अकाउंट। आपको क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, यू हैव टू प्रिपेयर दी सस्पेंस अकाउंट, आपको सस्पेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा। एंड व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ सस्पेंस अकाउंट, द फॉर्मेट ऑफ सस्पेंस अकाउंट इज डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर amount. So this is the basic format which you already used in the ledger account. So please do not get confused by this format. So date particular rupees, date particular rupees, this is the suspense account. And you can see that in the first rectification entry, suspense account क्या हुआ है, credit. तो suspense के credit में आएंगे और लिखेंगे by sales return, just like a posting. You can see that general से हम क्या बना रहे हैं, ledger. कौन सा लेजर अकाउंट बना रहे हैं, वी विल प्रिपेयर दी विच अकाउंट, वी प्रिपेयर दी, यस वी प्रिपेयर दी सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस का जहां जहां इफेक्ट पड़ा होगा उस साइड पे हम लोग इफेक्ट डालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सस्पेंस सेल्स रिटर्न को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, बिकॉज ऑफ सस्पेंस क्रेडिट है, तो सस्पेंस के क्रेडिट में क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न। उसी तरह से सस्पेंस यहाँ अगेन क्रेडिट है, तो क्रेडिट में जाकर क्या लिखेंगे, बाई साहू, अपोजिट नेम, वैल्यू विल बी 2000। यहां पर भी सस्पेंस क्रेडिट है, तो सस्पेंस के अपोजिट में कौन है, मशीनरी, तो मशीनरी लिखेंगे। बट यू नो वेरी वेल अमाउंट हमेशा किसके सामने का लिखेंगे, सस्पेंस के सामने का लिखेंगे, दैट इज 450। सो इन तीनों एंट्रीज में यू कैन सी दैट सस्पेंस यहाँ भी क्रिएट हुआ, यहाँ भी क्रिएट हुआ, यहाँ भी क्रिएट हुआ, तो तीनों का इफेक्ट सस्पेंस के किस अकाउंट साइड में पड़ा है, ये डेबिट साइड होता है, दिस इज अ क्रेडिट साइड। और अगर डेट दिया होता सो प्लीज मेंशन द डेट इन द लेजर अकाउंट एंड you will say you will have to responsibility to balance the account। आपको अकाउंट को बैलेंस करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर अकाउंट बैलेंस नहीं है इट मींस अकाउंट कंप्लीट नहीं है। सो 800 200 2800 450 दैट इज 3250 इज द क्रेडिट साइड ऑफ द बैलेंस। सो डेबिट में भी क्या होना चाहिए, 3250 होना चाहिए। इट मींस कितना बैलेंस है सस्पेंस अकाउंट में, सो वी फाइंड द डिफरेंस इन सस्पेंस अकाउंट इज 3250 एंड विच बैलेंस, दैट इज अ क्रेडिट बैलेंस। सो द आंसर इज
द डिफरेंस इन सस्पेंस अकाउंट इज, आंसर क्या है, क्रेडिट बैलेंस रुपीज 3250। हम ये कैसे कह रहे हैं कि क्रेडिट बैलेंस है, बिकॉज यू नो वेरी वेल क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड। सो डेबिट में तो कोई वैल्यू नहीं, क्रेडिट में 3250 रुपए है, so the credit balance is 3250. So the whole solution of this question is, first of all you pass the rectification entry and thereafter you have to prepare the suspense account, and after the preparation of the suspense account, this is the ledger account, you will balance the account and find out the difference in suspense account and clearly mention in your answer what is your answer, like a credit balance 3250. So I hope today we cleared all the topics very easily. So next video में हम लोग आएंगे नए चैप्टर के साथ, and if you have any doubt so please ask me in the online classes as well in the WhatsApp group. Okay, thank you, thanks a lot and take care.